Okay, students, so let us start today's lecture. On last turn, we were discussing the construction of regular grammar corresponding to a given FA. We have seen the process, and then we have taken certain examples of DFA, NFA, and epsilon NFA, and we have came to the process is applicable to DFA and NFA both, but it is not applicable to the epsilon NFA. Okay, so if we want to apply our process or we want to find the regular grammar corresponding to a given epsilon NFA, then first we have to convert it to the NFA or DFA, and then we can apply the process to find the corresponding regular grammar. So this was all which we have discussed on last lecture. So on today's lecture, we will discuss its reverse. That is, if a regular grammar is given to us, how we can find the FA corresponding to the given regular grammar. So we'll discuss the construction of FA for a given regular grammar. If we carefully look at the process, so let the regular grammar given to us is G. So G will be Vn, sigma, P and S. Okay, so this is Vn. Suppose A0 to AN, there are n plus 1 variables. There is an alphabet, there is a system of production given to us, and A0 is suppose the start symbol. So this grammar G is given to us. Now we will construct an FA. We will call this FA as M. So this FA M will recognize the language represented by the grammar G, the language generated by the grammar G. Okay, and this M will be defined as Q0, Q1 up to Qn, comma Qf, sigma, so that will be basically the set of states, sigma, delta, Q0 and Qf. So here if you look at corresponding to each variable in G, we have made one state in M. So corresponding to A0, there is a state Q0. Corresponding to A1, there is another state Q1. So similarly, corresponding to each variable in our grammar, we will form one state, and then we will form one additional state QF, which we will treat as the final state of the FA. So all other states which are corresponding to the variables in grammar will not be the final state. So final state will be the separate one QF. So this QF we are treating as the final state. Okay, and the start variable of the grammar, suppose if it is A0, so the state corresponding to A0, that is the Q0, will be our start state, is it? And sigma is the same as because our grammar is our language by the grammar, or FA will be defined over this alphabet, and this delta we will find with the help of P. So this delta we will find with the help of P, set of productions. Okay, so how will we finding डेल्टा फ्रॉम द सेट ऑफ प्रोडक्शन? देखिए अब हर चीज़ हमें नोन होगी, अगर हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स मालूम है तो हमें सेट ऑफ स्टेट्स मालूम हो गए. अल्फ़ाबेट हमारा नोन है, स्टार्ट स्टेट हमें मालूम हो गई, जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल है A0, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट होगी वो हमारी स्टार्ट स्टेट होगी, और QF हमने अलग से इसके अंदर डिफाइन किया, सो दैट विल बी द फाइनल स्टेट. एवरीथिंग इज नोन टू अस एक्सेप्ट दिस डेल्टा. So we'll find this delta based on these two rules, number 1, number 2. Rule number 1 says that each production AI to AAJ induces a transition from QI to QJ with label A. यानी कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्शन है AI से AAJ, so AI means AI के corresponding state हो गई QI. कहाँ पहुँच रहा हूँ? AJ पर पहुँच रहा हूँ, so इसके corresponding state क्या होगी? QJ. So I will make a transition from QI to QJ. AI to AJ means QI to QJ. I will be making a transition, and the level of this transition will be this terminal symbol A. So on A. So this kind of production will get converted to this kind of transition. So we will process each production, and then we will find the corresponding transition graph for the FA. So this is number 1. Then second type of productions which we may have will be of the form AI to A. अब देखिए चूंकि हमारी रेगुलर ग्रामर है, it is regular grammar,
So it may have only two kind of productions which are of the form A to A, B and A to A. Meaning thereby a variable to a terminal and variable. So this is the first form. अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म का प्रोडक्शन होगा, just 1 minute students. Yes, अगर हमारे पास फर्स्ट काइंड का प्रोडक्शंस होंगे ए टू ए बी यानी कि वेरिएबल टू ए टर्मिनल एंड वेरिएबल, तो हमारा इस तरह का एक जो है ट्रांजिशन जनरेट हो जाएगा. और अगर हमारे पास दूसरे टाइप का प्रोडक्शन यानी वेरिएबल टू ए टर्मिनल यानी कि ए आई टू ए इस फॉर्म के, सो इट विल ऑल्सो इंड्यूस ए ट्रांजिशन ऑफ द फॉर्म क्यू आई. सो ए आई से जाना है तो क्यू आई तो आएगा हमारा, बट पहुंचेंगे कहाँ? यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा कोई भी स्टेट नहीं है. सो हम कहाँ पहुंचेंगे? क्यू एफ, जो हमारी फाइनल स्टेट, इज इट? और ऑन विच सिंबल? ऑन दिस टर्मिनल. सो क्यू आई ऑन ए, वी विल मूव टू क्यू एफ. सो इस तरह के जो प्रोडक्शन है वो इस टाइप के ट्रांजिशंस को इंड्यूस करेंगे. सो केवल ये दो रूल है हमारे पास कि अगर हमारा ए आई टू ए जे है तो क्यू आई से क्यू जे जाएंगे ऑन ए. अगर ए आई टू ए है तो फिर क्यू आई से क्यू एफ जाएंगे ऑन ए. So only these two simple rules we have to follow and we will be able to convert our regular grammar to the corresponding finite automaton. I hope this process is clear to everyone, class. Is it clear? Yes, sir. So now I apply this process to a example. Okay, so suppose this is our example. Construct an FA recognizing the language of the following regular grammar. Grammar is given as G is equal to A0, A1. There are two variables, A0 and A1. There is input alphabet. Sigma is AB. So this is our VN sigma. This is our P. Set of production is defined by these productions. Okay. And A0 is the start symbol. So this is our start variable. Okay. And set of production is something like this. So अब मैं क्या करूँगा? एक एक करके, अब G मेरे पास है तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? I can find M. M will be what? Corresponding to each variable we will form one state. So A0 के corresponding एक state कह लीजिए Q0, A1 के corresponding दूसरी state Q1. So there is Q0 corresponding to A1 and corresponding to A0 and Q1 corresponding to A1. So दोनों variables के corresponding मैंने एक एक state बना ली. अब मुझे एक एडिशनल स्टेट बनानी है जो मेरी फाइनल स्टेट का वर्क करेगी, दैट इज दी क्यू एफ. ओके, सो ये मेरा सेट ऑफ स्टेट्स बन गया जो मेरा एफ ए में होगा. देन देयर विल बी द अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट. सो ए बी इट विल बी सेम एज ऑफ ग्रामर. देन वी विल बी हैविंग ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा एंड स्टार्ट. तो these states, which state will be the start state, जो कि स्टार्ट सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट है. मेरा स्टार्ट सिंबल यहाँ क्या था? A0. A0 वाज माय स्टार्ट सिंबल. सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट है मेरी Q0. सो Q0 विल बी माय स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट मेरी कौन सी होगी? जो मैंने अलग से ऐड की है, QF. ऑलवेज दिस QF विल बी द फाइनल स्टेट जिसको हमने अलग से ऐड किया. इज इट? सो ये मेरा FA बन गया. अब मुझे इसमें क्या मालूम करना है? केवल डेल्टा पता चल जाए, यानी ट्रांजिशन फंक्शन पता चल जाए, बाकी सारी चीजें मुझे नोन है. अब ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा किससे पता चलेगा? डेल्टा पता चलेगा इस सेट ऑफ प्रोडक्शन से. तो इसके प्रोडक्शंस को एक एक करके हम प्रोसेस करना शुरू करते हैं. सबसे पहले इस पहले प्रोडक्शन को मैं प्रोसेस करता हूँ, A0 टू AA1. ओके, सो A0 टू A1, A0 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी मेरी Q0. ओके, कहाँ जाऊंगा? Q1, A1 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट. सो A0 से A1 यानी Q0 से Q1 जाना है. Q0 से मुझे Q1 जाना है. ऑन विच सिंबल? ऑन दिस सिंबल A. So I will be writing an A. Is it? तो एक मेरा प्रोसेस हो गया. अब मैं अगले प्रोडक्शंस को प्रोसेस करता हूँ. अगले मेरे तीन प्रोडक्शंस और हैं, A1 टू BA1, A1 टू BA0, A1 टू A. ओके, सो सबसे पहला प्रोसेस करते हैं A1 टू BA1, यानी कि A1 से A1, यानी कि Q1 से Q1. तो देयर विल बी अ सेल्फ लूप फ्रॉम Q1 टू Q1. ऑन विच सिंबल? ऑन दिस सिंबल B. ऑन दिस सिंबल B. इज इट? तो ये प्रोसेस हो गया हमारा. देन सिमिलरली अब इस वाले पे आते हैं, A1 टू A0, यानी कि Q1 से Q0 किस सिंबल पे? B पे. सो Q1 से Q0,
Q1 से Q0 on which symbol B, ये प्रोसेस हो गया। देन A1 to A, A1 to A यानी कि Q1 से जाएगा, मगर कहाँ जाएगा, क्योंकि अब इसमें आगे वेरिएबल नहीं है तो किस पे जाएगा, फाइनल स्टेट पे जाएगा। ओके, सो दिस इज से QF, सो विच इज ए फाइनल स्टेट। सो A1 यानी Q1 से QF पे जाएगा ऑन A, Q1 से QF पे जाएगा ऑन। ओके, सो दिस इज, अब हमने सारे के सारे जो है जितने भी प्रोडक्शन थे मेरे पास वो सारे प्रोसेस कर लिए। सो दिस इज द FA corresponding to this particular grammar. Okay, corresponding to this particular grammar. Now it will represent the same language as represented by the grammar. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, so this is not a DFA, it is an NFA. Basically it is an NFA. Okay, और इसमें स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी, देखिए Q0 हमारी स्टार्ट स्टेट है, सो आई कैन मार्क हियर Q0 एज स्टार्ट स्टेट, QF हमारी फाइनल स्टेट है, वो हमने मार्क करी रखी है, और बाकी सारे प्रोडक्शन ट्रांजिशंस हमारे यहाँ आ गए। सो ये मेरा NFA बन गया, क्योंकि Q0 ऑन A गोज टू हेयर, बट इसका आप देखिए Q0 का B पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, मिसिंग है। Q1 का B पे दो ट्रांजिशन है, एक तो Q1 पे इटसेल्फ और दूसरा Q0 पे, और A पर गया है QF, और QF का ना A पर ना B पर कोई ट्रांजिशन नहीं, सो क्लियरली इट इज एन NFA. So the result which we have obtained from our process is an NFA. If you want a DFA corresponding to it, then you can convert this NFA to the DFA. So convert to DFA. So when you will convert to this NFA to DFA, you will find the DFA corresponding to the given grammar. Okay, NFA से DFA कैसे convert करते हैं? This we already know. It is through the subset construction. Through subset construction. With this process we have already discussed. Is it clear, class? Class, it is clear? Yes, sir. Okay. Now I will take one more example. So now this will be a familiar example. So now this grammar is G, S, A. So there are two variables S and A. The two symbols A and B. Set of production P is given by these productions. Okay, and S is my start symbol. Is it? So अब अगर मैं इसके corresponding M बनाता हूँ, okay, so M is set of states. S के corresponding state में suppose QS कह देता हूँ. Is it? क्योंकि जब मैंने A0, A1 अगर वेरिएबल लिए थे तो corresponding state Q0, Q1 ले ली थी. Just we should be able to make a correspondence between the variable and the state. Okay, so S variable है, so QS I had given the name to the state. Okay, A variable है, so QA I had given the name to this state. तो ये दोनों दो स्टेट होंगे मेरी वेरिएबल्स के corresponding. दो वेरिएबल थे तो दो स्टेट आ गई. अब एक स्टेट मुझे यहाँ और ऐड करनी है, that is the final state. So इसको मैं कह देता हूँ QF. तो ये आपका सेट ऑफ स्टेट हो गया. इनपुट अल्फाबेट विल बी A, B. ट्रांजिशन फंक्शन विल बी डेल्टा, विच विल बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शंस इन P. ओके, सो डेल्टा एंड स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी, देखिए यहाँ स्टार्ट सिंबल क्या है, S. S इज द स्टार्ट सिंबल. सो S के corresponding जो भी वेरिएबल होगा, दैट इज QS विल बी माई स्टार्ट स्टेट. माई स्टार्ट स्टेट इज QS. सो Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F. इस फाइनल स्टेट कौन सी, तो हमने अलग से डाली है QF. सो QF विल बी द फाइनल स्टेट. सो दिस विल बी माई M. अब इस M में केवल क्या रह गया कि मैं डेल्टा फाइंड आउट करूँ. ओके, डेल्टा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ के फॉर्म में. कैसे करके सारे प्रोडक्शंस को प्रोसेस करते हैं. सो S से A, यानी कि QS से QA ऑन A. देखिए QS से QA ऑन सिंबल A. ये पहला वाला प्रोडक्शन मैंने प्रोसेस किया, S से AA. सो QS से QA ऑन A. इसी तरह से ऑन B ऑल्सो द सेम वन. सो S से A, यानी कि QS से QA ऑन B. सो QS से QA ही जाना है B पर भी. सो मैंने B भी लिख लिया यहाँ, कॉमा लगा के B लिख लिया. इज इट क्लियर? देन S से A, S से A. अब S से A यानी कि कोई वेरिएबल तो है नहीं, यानी QS में कहाँ जाऊँगा, QF पे जाऊँगा. सो सपोज आई हैव रीच टू द QF, और QF क्या है मेरी फाइनल स्टेट.
और इसमें मेरी स्टार्ट स्टेट कौन सी है, मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, QS इज माय स्टार्ट स्टेट, सो आई कैन मार्क दिस एज द स्टार्ट स्टेट। सो QS से S to A मैं इस वाले को प्रोसेस कर रहा हूँ, सो QS से QF पे जाऊंगा ऑन A, QS से QF पे गया ऑन A। सिमिलरली जब S to B को प्रोसेस करूंगा तो अगेन QS से कहाँ जाऊंगा, QF पे जाऊंगा ऑन B, so on B as well. Similarly on epsilon also, okay, so on epsilon also I will move from QS to QF, is it? So ये सारे के सारे मैंने प्रोसेस कर लिए। देखिए जहाँ भी वेरिएबल सेकंड वेरिएबल नहीं है, जहाँ भी राइट हैंड साइड पे वेरिएबल नहीं है, वहां मैं कहाँ जाऊंगा, QF पे जाऊंगा, और किस पे जाऊंगा, जो कुछ भी यहाँ लिखा है, अगर सिंबल लिखा है तो सिंबल और एप्सिलॉन लिखा है तो एप्सिलॉन, इज इट? अब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ ए वाले प्रोडक्शंस को, A to AA, यानी कि QA से QA सेल्फ लूप, QA से QA सेल्फ लूप किस पर, A पर। अब इस वाले को प्रोसेस किया A से BA, यानी कि A से अगेन QA से QA सेल्फ लूप किस पर, B पर, B पर, इज इट? अब जब मैं A से स्मॉल a इस वाले को प्रोसेस करूंगा, तो अब चूंकि यहाँ देखिए दूसरा वेरिएबल नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा, फाइनल स्टेट पे, ओके। सो QA से QF पर, सो QA से QF पर, QA से QF पर, किस सिंबल पर, A पर। सिमिलरली जब A to B को फॉलो करूंगा तो QA से QF पे जाऊंगा ऑन सिंबल B। सो इस तरह से मैंने अपना ये पूरा FA कंप्लीट कर लिया। नाउ यू कैन सी दैट हियर इन रिजल्ट आई हैव ऑब्टेन्ड दी एप्सिलॉन NFA। पिछले वाले केस में क्या मिला था मेरे को, NFA मिला था, इस वाले केस में मेरे को क्या मिला है, एप्सिलॉन NFA मिला है। मींस इस प्रोसेस से जो रिजल्ट है आपको या तो NFA मिलेगा या एप्सिलॉन NFA मिलेगा। अगर NFA मिलता है तो उसको आप DFA में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर एप्सिलॉन NFA मिलता है तो एप्सिलॉन NFA को भी आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, DFA में। वी हैव द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट फॉर एप्सिलॉन NFA to see that कि जो हमारा फाइनल DFA आ रहा है वो इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं, ओके। तो इसको चेक कर लेते हैं, एप्सिलॉन NFA, ओके। एप्सिलॉन NFA है ये, तो अगर मैं इसकी जल्दी से टेबल बनाऊं, इसकी टेबल कुछ ऐसी बनेगी, स्टेट ओब्लिक सिग्मा, स्टेट है मेरी यहाँ QS QA एंड QF, ये मेरी है फाइनल स्टेट, ये मेरी है स्टार्ट स्टेट। A पर कहाँ जाऊंगा, B पर कहाँ जाऊंगा एंड एप्सिलॉन पर कहाँ जाऊंगा, these things, three things I have to show. So QS on A is moving to QA as well as on A it is moving to QF. So it is QA comma QF. On B it is moving to QA and on B also it is moving to QF. So it is also QA comma QF. Then on epsilon QS, epsilon पे केवल कहाँ जा रहा है, QF पे जा रहा है, so it is going to QF. Similarly QA on A, तो QA on A या तो QA पे है या फिर किस पर है, QF पर। देखिए on A ये यहाँ भी आ रहा है और on A ये QF पे भी आ रहा है, so this is also QA comma QF. On B also it is, you can check QA comma QF. एंड एप्सिलॉन पे इसका कोई प्रोडक्शन नहीं, तो इट इज 5, और QF का अगर आप देखें, QF का कहीं पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, सो इट इज 5। अगर इसको मैं DFA में कन्वर्ट करूं, सो आई विल बी राइटिंग ए टेबल फॉर DFA, स्टेट ओब्लिक सिग्मा, ऑन A वेयर आई मूव्स, ऑन B वेयर आई मूव्स, ओके। अब इसको प्रोसेस करने के लिए मुझे, चूंकि एप्सिलॉन है तो मुझे सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर चाहिएगा, तो इसके आगे मैं एप्सिलॉन क्लोजर और लिख लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ E क्लोज, ओके। E क्लोज क्या है, QS का E क्लोज क्या है, QS से QS तो रहेगा ही, और एप्सिलॉन से आप कहाँ पहुँच सकते हैं, QF, सो इट इज QS कॉमा QF, ये इसका एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। QA का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, क्योंकि इससे कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर नहीं जा रहा, तो ओनली QA विल बी द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, इसलिए QF का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, क्योंकि इससे कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर नहीं जा रहा, तो इट विल बी ओनली QF, इज इट? अब मैं स्टेट स्टार्ट करता हूँ,
सबसे पहले मुझे स्टार्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट स्टेट क्या है मेरी QS, लेकिन चूंकि एप्सिलॉन NFA है मेरा, तो QS नहीं लूंगा मैं। अगर नॉर्मल NFA होता तो QS ही ले लेता, बट एप्सिलॉन NFA तो QS का एप्सिलॉन क्लोजर, QS का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, QS QF। सो QS कॉमा QF, ये दिस, ओके। सो दिस इज माई स्टार्ट स्टेट QS QF। अब QS QF ऑन A, यानी कि QS ऑन A एंड QF ऑन A, दोनों को जो है आप यूनियन कर लीजिए, QA QF यूनियन 5। सो इट विल बी बेसिकली QA QF। Similarly, QS QF on B. So QS on B, that is this one, and QF on B, that is this one. In दोनों का यूनियन है, again it is QA QF. So it is QA QF. कोई नई स्टेट जनरेट हुई? Yes, one. That is QA QF. So we'll write QA comma QF. So this is a new state generated. QA QF on A means QA on A and QF on A. Again इसका यूनियन करेंगे तो ये वापस QA QF ही आ जाएगा, QA QF। इसी तरह से QA QF on B, so QA on B this one and QF on B, that is this one, okay। So it is again QA QF। कोई नई स्टेट जनरेट हुई? नहीं, कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई। सो हमारा प्रोसेस यहीं पे क्लोज हो गया। इसमें स्टार्ट स्टेट हमें मालूम है, फाइनल स्टेट कौन सी है, जहां भी मेरा QF आ गया वही मेरी फाइनल स्टेट है। सो QF मेरा इसके अंदर भी है, सो दिस इज ऑल्सो द फाइनल स्टेट। QF मेरा इसके अंदर भी है, सो दिस इज ऑल्सो द फाइनल स्टेट, मीन्स बोथ दी स्टेट्स आर फाइनल स्टेट्स, ओके। सो अगर मैं इसका DFA बनाता हूँ तो इसका DFA क्या बनेगा? इसका DFA जो बनेगा वो दैट विल बी समथिंग QS कॉमा QF। This is your start as well as final state. It is final state as well as the start state. Okay. दूसरी स्टेट मेरे पास क्या है? QA, QF. This is also the final state. अब ट्रांजिशन क्या है? QS QF on A. कहाँ पे जा रहा है? QA QF पर. Is it? So on A it will move here. And on B also it is going to the same state. So on B also it is moved here. And QA QF both on A and B to itself. So both on A and B to itself. So basically if you look at this particular DFA, this will accept all the words over A and B. Is it or not? It will accept all the words over A and B. अब आप देखिए इस ग्रामर से कौन से वर्ड्स जनरेट होंगे? आप एस से शुरू करिए। देखिए एप्सिलॉन यू कैन जनरेट, सो एप्सिलॉन विल बी इनसाइड दिस लैंग्वेज, ओके। ए एंड बी विल बी इनसाइड द लैंग्वेज, क्योंकि ये एस से डायरेक्ट टाइप हो सकते हैं। सो ए विल बी द लैंग्वेज, बी विल बी इन द लैंग्वेज। मैं चेक अगर आप इन तीनों को नहीं यूज करके इन दोनों में से किसी को यूज करते हैं, सपोज आप ए को यूज करते हैं तो एस से ए, सो आपका ए आ गया और साथ में कैपिटल ए आ गया। अब इस कैपिटल ए को रिमूव करने के लिए आप इनमें से किसी प्रोडक्शन को यूज करेंगे। सपोज मैंने इस ए को यूज किया, मेरा क्या बन गया? ए। अगर मैं इस ए की जगह बी यूज करता तो मेरा वर्ड क्या बन जाता? ए बी बन जाता। सो ए एंड ए बी कैन बी जनरेटेड लाइक दिस। सिमिलरली अगर एस से मैं ए के बजाय बी ए लेता, ओके, सो मेरा वर्ड किससे स्टार्ट होता? बी से। अब वापस वेरिएबल क्या आ गया? ए आ गया। अब ए आ गया तो देखिए अब मैं इन्हीं में से कुछ यूज करूंगा। सो अगर मैं इस स्मॉल ए को यूज करता हूं तो बी ए, और इस स्मॉल बी को यूज करता हूं तो बी बी। दीज वर्ड्स विल बी जनरेटेड। सो ये सारे वर्ड जनरेट हो गए। अब सपोज अगर मुझे जो है, अब देखिए 0 लेंथ के सारे वर्ड जनरेट किए, 1 लेंथ के सारे वर्ड जनरेट किए एंड 2 लेंथ के सारे वर्ड जनरेट कर लिए। अब आप देखिए अगर मैं हायर लेंथ के वर्ड अगर जनरेट होंगे तो मैं या तो ए से स्टार्ट होगा वर्ड या बी से। अगर ए से स्टार्ट होगा, सपोज मैं ए को यूज कर रहा हूँ, ओके, सो ए से स्टार्ट हो रहा है, इज इट? अब मैं इस ए पे आ गया। अब ये ऑप्शंस तो मैं चूज कर चुका था, ए बी और ए बी भी मैं जनरेट कर चुका था। अब मैं इसको एक बार फिर से यूज करता हूँ, ए को, ओके। सो दूसरा ए मेरा जनरेट होगा, वापस ये ए है। अब इस ए को रिमूव करने के लिए मुझे इन दोनों में से किसी को यूज करना पड़ेगा। अगर ए को यूज करता हूँ तो ट्रिपल ए, और बी को यूज करता हूँ तो ए बी विल गेट जनरेटेड। इज इट और नॉट क्लियर? और दूसरा क्या हो सकता था कि मैंने ए की जगह सेकंड टाइम ए यूज कर दिया। पहला तो ए था मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ से यूज करके आ रहा था। दूसरी बार अब मैंने ए की जगह ए यूज किया था। अगर मैं ये यूज ना करता, बी ए यूज करता, तो मेरा सेकंड लेटर क्या हो जाता? बी। और फिर वापस ये आ जाता। इस ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? या तो स्मॉल ए से या स्मॉल बी से। अगर स्मॉल ए से करूंगा मेरा वर्ड क्या हो जाएगा? ए बी ए। और अगर स्मॉल बी से करूंगा तो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा? ए बी बी।
सिस्टमेटिकली इसी तरह से मैं सारे ऑप्शंस को अगर एक्सरसाइज करूँ, यू विल सी दैट all words over A and B will be generated through this grammar. So this grammar LG is this one, which is equivalent to A plus B asterisk. All the words over A and B, and you can see here all the words over A and B will be accepted by this FA. Epsilon will be accepted here, then single A and single B will be accepted here, and then further all the words will end here, and because it is a final state, so every word will get accepted. Is it clear? So this is the conversion of a grammar to the corresponding FA. So I have shown you here कि इस प्रोसेस से ग्रामर से जब आप कन्वर्ट करेंगे, या तो आपको एप्सिलॉन एनएफए मिलेगा, या तो आपको एप्सिलॉन एनएफए मिलेगा, या आपको एनएफए मिलेगा. जो भी मिलता है उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट टू डीएफए. कन्वर्ट टू डीएफए. ये प्रोसेस ऑलरेडी आपको मालूम है. सो यानी कि रेगुलर ग्रामर से आपको क्या मिलेगा? या तो एप्सिलॉन एनएफए या एनएफए, और उसको आप कन्वर्ट करेंगे डीएफए में. तो इस तरह से आप रेगुलर ग्रामर से डीएफए फाइंड आउट कर पाएंगे. अब जो ग्रामर से आपको डीएफए मिलेगा, जैसे ये डीएफए आपको मिला है, आप ये देखें ये डीएफए मिनिमाइज्ड हो जरूरी नहीं, तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं? इस डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आवश्यकता है. मिनिमाइज डीएफए. इज इट? सो ये सारे प्रोसेस पे हो सकते हैं. तो इस तरह से रेगुलर ग्रामर से आप एक मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्जन कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्लास, it is clear? Class, is it clear? Yes, sir. Okay, so this is all from my side in this particular topic, conversion of or the construction of FA corresponding to a given regular grammar. So now we have seen both the things, how we can convert a given FA to the regular grammar, and reverse of it. If the regular grammar is given, how we can convert it to the FA. So this I am closing at this point of time. इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो दैट आई विल नॉट बी टीचिंग थ्रू स्लाइड्स. फॉर दैट आई ऑलरेडी हैव ए प्रिपेयर्ड वीडियो ऑफ माई सेल्फ. ओके, सो आई विल बी प्लेइंग दैट वीडियो. You carefully see that video, and if you have any questions in that video, that you can ask. Okay.